said कि your today आपकी क्लास नहीं है सर अभी मेरी क्लास नहीं है वो नहीं Yes, सेट sir. की अभी आपकी क्लास आगे की क्लास है. नेक्स्ट वीक से अच्छा आपने अभी कंफर्म किया है क्या मैडम से यस सर ओह अच्छा बताओ क्या करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है हम तो नहीं सर बहुत नहीं सारे सर क्लास ले लीजिए सर इतने लोग जुड़े हुए हैं. बहुत से बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखे थे उसके लिए बस Yes, sir. अच्छा नहीं देख लो जैसे आप बोलो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर नेक्स्ट वीक वापस सर, आपका आप भी लेक्चर एक बार स्टार्ट हो जाएगा सर कोई बात नहीं एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी ये हम काउंट नहीं करेंगे इस क्लास को आपका अटेंडेंस भी लगवा देंगे अटेंडेंस भी लगवाऊंगा आपका कॉलेज से कह के और एक्स्ट्रा समझ लो पढ़ लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा चलो ओके लेट मी थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं इसमें हाँ yes I'll tell you the basic because some of the students may not have studied the basic actually I wanted to say to the college I have been trying to say to the college that straight away they have kept this subject of corporate tax planning. In fact, we should have some basic subject of income tax also. Those students, because we are presuming that the students would be knowing about income tax and other taxation things. So straight away we are talking about GST and other things. But nevertheless, because some of the students are from science background, from engineering background also. First of all, let me share you the syllabus which we are following over here. Although I have covered the income tax portion also in corporate tax planning, because you can't understand corporate tax planning unless and until you study income tax, because even if you are in a company, you are looking after the finances, you must know about personal income tax also, because you have to deduct the TDS of your employees. You have to make their salaries. Even if you are in HR, you have to understand the income tax things, because that is how you make the salaries of the people, so that their tax implication is the minimum. This is the syllabus. In fact, the subject was offered in 5th trimester. So now because of this situation, we are offering them this subject now. So unit 1, I have kept basic concepts of taxation, what are direct and indirect taxes, what residential status and tax incidence. That is whether a person is resident, non-resident, resident and ordinarily resident, resident and not ordinarily resident. So what are the norms over here? This is basic also, but very essential. Then income, which is exempted from tax for companies, for firms, for individuals, which are exempted incomes. Then income from salaries, because in corporate, you must understand how income from salaries is computed, which part is taxable, which part is non-taxable. Income from house property, deductions from gross total income. In unit 2, I think you can see this slide, no? You can. Are you able to see the syllabus? Yes, sir. Then in unit 2, taxation of HUFs, Hindu undivided families, partnership firms, LLPs, companies, income from profits and gains of business and profession, income from capital gains, income from other sources, TDS, clubbing and aggregation of income, set off and carrying forward of losses. In fact, the course is too much. Here we have just written set off and carry forward of losses, but to understand each of them, we need a lot of time. Again, this subject should be of 3 credits, although it has been offered in 1.5 credits. Again, that is another problem area. Anyway, we will try to do justice to it. Unit 3rd, I have included customs duty, security transaction tax, professional tax, how taxation of startups is there, advance payment of tax, assessment of Hindu and अरे ये दोबारा आ गया एक्चुअली ये ऊपर आ चुका था ओके assessment of partnership firms LLPs. That was taxation. Here it is assessment of cooperative societies, corporate taxes. And unit 4 is the most important one, which is about GST, goods and service tax, input tax credit, IGST, SGST, reverse charge mechanism, what is composition scheme, types of GST returns, GST refunds and appeals under GST. These are the books which I have recommended. One is Ravi Dutt Sharma. There is only 1 or 2 book copies in the library. I have asked them. Yesterday I have written a mail. If you can see, this is the book with me. If you can see myself also, Taxes in India. Ram Dutt Sharma. He has written in very, very simple language. Then Vinod Singhania, Dr. Monica Singhania, Corporate Tax Planning. Then SP Goyal. Then reference books also I have written.
Divya Bansal, GST practitioner, question bank. It's a very good objective type question bank. There is a provision that you can become a GST. You can become. There is a position called. You can help the organizations to file their GST returns. So, in order to become that a GST person, you have to clear one exams. So this book is for that. Question bank is there. Then E.A. Srinivas is a handbook of corporate tax planning. Again, I have recommended it to the library, although I have also not seen it. So then suggested readings, etc. Fine. The first unit is basics concepts of taxation. So how many of you currently, those who are present right now in this meeting, in this session, how many of you have never been exposed to any kind of taxation? So that Sir, me. Yes. Yeah, please. Sir, me Kamlesh, sir. Sir, engineering background, sir, so no taxation exposure. No, अच्छा, okay. ठीक है, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से हम चलेंगे. सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक स्लाइड दिखाता हूँ. हाँ, सबसे पहले हम ये वाली स्लाइड दिखाते हैं आपको, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग. ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन. देखिए, एक टैक्स के बारे में इट इज अ वेरी फेमस कोटेशन अबाउट टैक्स दैट एज, जैसे हम बोलते हैं ना, एज श्योर एज डेथ. When somebody dies, there is no question asked. A person is dead, or so no question asked. If a person is sick in a hospital, then so many questions are asked. क्या हुआ था? What happened? अभी कैसी तबीयत है? But if a person is died, so as sure as death. Similarly, there is another quotation that there are two things sure in life. One is death and the other are taxes. So when a person is liable to pay tax, a person has to pay the tax. The tax authorities, by any means, would try to recover the tax from that person. So even if there is a liability of 10 years back, still you are liable to pay the taxes. So those cases can be reopened, right? So tax may, some basic principles of taxation are principle of equity, principle of certainty, principle of convenience, and principle of economy. The government of India, whenever they decide the taxation rates, whether it is income tax, whether it is GST rates, whether it is excise duty, whether it is octroi tax. So these are some of the principles. So very quickly, principle of equity means that every person should pay to the government, depending upon his ability to pay. Rich people should pay higher tax. For example, income tax, if you will see the slab rates, as your income increases, the tax rate increases. And not only in India, across the world, this concept is being followed. Principle of equity means according to the person's ability to pay, the person will pay the tax. If my income is less, for example, up to 2.5 lakh rupees annual income, I don't have to pay any income tax. After 2.5 lakh, then my tax liability starts. So as my income slab increases, I have to pay more tax. So that is called principle of equity. And why rich people should pay high according to the government? Principle of equity, because without the protection of the government authorities, police, defense, they are using the government's infrastructure, they could not have earned and enjoyed their income. तो गरीब आदमी से टैक्स नहीं लेंगे. जैसे हमारे एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉन टैक्सेबल इन इंडिया. So agricultural income, because government feels it's the farmer which is producing
the basic items which are essential items for survival of a human being. So therefore we should not tax these people. So again, it is a part of principle of equity. Principle of certainty. The tax which an individual has to pay should be certain, not arbitrary. There should be a definite rate of tax. It should not be an arbitrary, ambiguous kind of a rate. So in advance, a person or a company or a firm or an individual should know that how much tax he or she has to pay. At what time one has to pay the tax. There should be a definite time that yes, for example, when we have to pay the income tax, a financial year ends on 31st of March. So as far as income tax is concerned, the individuals are given time up to 31st July. Till 31st of July, we can pay our income tax. So currently today is 16th July. So ideally we should have filed our return before 31st of July, but this year because of the pandemic, the period has been extended. So in what form the tax has to be paid to the government, what time we have to pay the tax. So principle of certainty has to be there. Therefore, in the budget, the finance minister has to take care of these aspects. Principle of equity, he has to balance how much tax he should impose on a particular person. Then principle of convenience. Paying tax, the timing of the tax payment should be convenient to the taxpayer. That is why they give time to pay the tax to the individuals, because the financial year, although it ends on 31st of March, however, they give April, May, June, July, they give 4 months, because we will consolidate all our accounts, and from somewhere we will get the TDS certificate, Form 16, Form 16A, etc. So therefore, they give us the time to compile our accounts and to prepare our statements and to file our income tax returns. So for example, land revenues collected at the time of harvest. So therefore, the convenience of the citizens also have to be taken into consideration. Fourth is principle of economy. What does this mean? Principle of economy. It should not happen that, suppose I am a government body and I have to collect tax of say 1 crore rupees. And to collect 1 crore rupees tax, I am spending 2 crore rupees to collect the tax. That is the salaries of my people, the administration cost, and let's say I am suing the person to recover the taxes, and in that situation I am spending more to recover that money. So it doesn't make sense. So ultimately the government would be under deficit. So therefore, principle of economy also has to be taken into consideration. Economy in tax administration. That is why if you talk about income tax, or earlier it was sales tax, now it is GST, or income tax from the companies is concerned, or business firms is concerned, today everything is online. Now we are filing the returns online, and for companies it is compulsory to file the returns online. Now we don't get to see the income tax official, so the corruption has also reduced to a large extent. Secondly, some cases may go to scrutiny. So income tax officials are overlooking, small individuals. अभी आजकल क्या है, 7-8 लाख रुपए की जो इनकम है साल की, अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं, तो वो उसको ओवरलुक कर देते हैं. अगर थोड़ा सा भी आपने अगर आटे में नमक मिलाया है थोड़ा सा, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं. They try to catch big fish. बिकॉज अगर हमने कितना कर लिया होगा, हमने 6-7 लाख की इनकम दिखाई है साल की, तो हमने थोड़ा सा इधर उधर कर लिया होगा ना, 10-5 हजार रुपए का टैक्स का फर्क पड़ा होगा ज्यादा से ज्यादा. हालांकि उसमें भी अगर it is a very visible error, then yes, they will point out that also. I'm not saying that they will ignore it, but they will not take that case into scrutiny, because they don't want to spend their energy into small tax evasions. I think
I have made my point. You have understood what I am trying to say. Yes, sir. हाँ, तो ये चार principles. So what is tax? Basically, taxes are due we pay for the privileges of membership in an organized society. So this is how you define it, formally. So tax is a compulsory payment made to the government for services it provides to us, though people may not be completely satisfied or convinced with these services. And income tax, for example, is an instrument used by the government to achieve its social and economic objectives. So it is because of the taxes that the government runs. So the major source of the government is through taxes only. That is the income of the government. Otherwise, government has no other income. I mean, this is the major portion of the government's income. Of course, governments have income through dividends. Various public sector companies which the government, in which the government has invested, they get dividends out of that. That is another thing. So now direct taxes and indirect taxes. Direct taxes, for example, if you see in this slide, the meaning of direct taxes are taxes in which the incidence and the impact falls on the same person or assessee. So for example, income tax, wealth tax, capital gains tax, these are all direct taxes. For example, I am earning an income, so the liability also falls, I am the earner and the liability also falls on me to pay those taxes. So that is direct tax. Whereas indirect tax are such type of taxes where incidence and impact fall on two different persons. I am buying certain goods from a retailer, from a factory. So ultimately, the burden falls on me as a consumer to pay the taxes. But I am not paying those taxes. Whatever GST I am paying, they are recovering from me. And so the liability to pay the tax is on the retailer or on the businessman who is selling those goods to me. So therefore, that is why we are writing where the incidence and impact falls on two different persons. So that therefore, it is called indirect tax. Of course, I am only paying it from my own pocket. The GST, आप लोग कितने सारे बिल्स रोजाना चीजें खरीदते हो तो आप उसमें हम ही लोग तो पे कर रहे हैं, बट हमको जमा हमको नहीं कराना है. That is being deposited by the concerned business person. Whereas direct taxes, the liability is on me, on you, that we all have to pay those taxes, whatever income we are earning. So direct tax is progressive in nature. Generally, this is what I was saying, that as the income increases, direct taxes rates increases. Whereas in indirect taxes, I can say sometimes it is progressive, sometimes irregressive. चलिए मैं इसमें बाद में ऐड कर दूंगा. कई बार क्या होता है कि जितना आपका जैसे टर्नओवर ज्यादा बढ़ता है तो टैक्स रेट्स कम हो जाते हैं इसके अंदर, ऐसा भी है इसके अंदर. So they may not be always progressive. So in certain cases they may increase with the turnover. In some cases they may decrease also. Taxable income event is taxable income or taxable wealth of the assessees. As soon as we earn an income, we are liable to pay the tax. So that is a taxable event. Event means when we become liable to pay those taxes. Whereas indirect tax may taxable event becomes as soon as there is a purchase or sale or manufacture of goods or rendering of services. Sorry to interrupt you. Yeah. Hello. Yes. Sorry to interrupt you, sir. Sir, can you please explain again? Indirect taxes are regressive in nature. Regressive in nature means that if the turnover increases, the tax rate may decrease. That is the meaning of regressive over here. Okay, sir. Then, right. So, for example, excise duty. Although now excise duty has been merged with GST, now excise duty is no more over there. Except in certain items, still excise duty is there. In the case of alcohol, in the case of cigarettes, still excise duty is there. But in all other products, excise duty has been submerged with the GST. So what is excise duty? As soon as earlier, excise duty used to be imposed on majority of the products. So as soon as the product is manufactured and it is ready to be shipped from the factory, the excise duty used to be imposed on that product. So here the taxable event will be whenever a manufactured good is going out of the factory, the excise duty
is liable to be paid. So that becomes an event. In certain cases, yes, as soon as you sell the goods as a manufacturer or as a wholesaler or as a retailer, you have to pay the GST, goods and services tax. Or I am a service provider. Let us say I am doing some consultancy work. So I have got my consultancy fee. So I have to charge a service tax also, GST. So service tax. So that I have to pay to the government. You go in a hotel, restaurant. So there it is a service. So you have to again pay a service tax over there. So for example, when we will talk about GST, we'll talk it in more detail. For example, if it is a non-AC restaurant, then the GST rate is less. But if it is a AC restaurant, then the GST rate is more. Levy and collection, like indirect tax levied and collected from the assessee. A person who is being assessed is called an assessee. For example, if I am paying my income tax and I am filing my return, so I become an assessee. Right? So it is levied and collected from the assessee directly. That is why it is known as direct tax. Whereas indirect tax levied and collected from the consumer. You and me pay these tax when we go to a restaurant, when we buy fruits, vegetables, when we buy grocery items. So GST is being charged from us. That is, tax is being charged from us, but we are not depositing it to the exchequer. That is the government authorities. It is being paid by the dealer. So that dealer becomes the assessee. That shopkeeper becomes the assessee. That the manufacturer becomes the assessee. Right? Shifting of burden. Tax burden is directly borne by the assessee. Hence, the burden cannot be shifted. I cannot shift whatever I am earning as income. I cannot shift the burden. Then there is a capital gain. When I buy a share and sell it at a profit, so this profit is known as capital gain. Now, capital gains rates are different. So I cannot shift my burden to anybody else. Since I have made a gain, I have to pay the tax. Similarly, I buy a property and then after a few years, I sell this property at a higher rate. The gain which I make is again a capital gain from property. Similarly, capital gain from shares, capital gain from mutual funds. There can be capital gain from gold, capital gain from any other commodity like chana, like bajra, like commodity. You have a commodity exchange. So these are called capital gains. So these are all comes under direct taxes. Whereas indirect tax, the tax burden is shifting to the subsequent or ultimate user. What does this mean? Now let us say Hindustan Unilever is making different kinds of product, toothpaste, to soaps, to oils, etc., etc. So let's say they have made a Lux soap. So Lux, first of all, they will sell it to the distributor, and the distributor is for whole Haryana state. Now this distributor will pay the tax. This is how the GST now works. Now this distributor will pay the tax. Distributor sells it to a wholesaler. Wholesaler is in a particular district. Or a carrying and forwarding agent. So this wholesaler is also paying. Earlier what was happening, everybody was paying tax, so tax was being collected at various points. Now there is single point of tax. Now wholesaler will pay tax, but he will ask for the refund. So wholesaler now, the distributor will ask for the refund, because already the wholesaler has now paid the GST. So input, that is called input tax credit. Now distributor will ask for the credit from the government, because government has got the tax 2 times. Now wholesaler sells to retailer. Now retailer will pay the tax, and now wholesaler will ask for the refund what he has paid. And then finally the retailer will charge the tax from the consumer. So that is how we say that tax burden is shifted to the subsequent ultimate user. So it's a chain. But ultimately it is to be paid by the final consumer who is consuming that product. So that is the difference between direct taxes and indirect taxes. In direct tax, you cannot shift the burden.
If you have earned the profit, you have to pay that tax, capital gain or income tax. Whereas in indirect taxes, ultimately the final user has to pay. But till if the product has not been sold, let's say मैं retailer हूँ, I am a retailer, मैंने तो टैक्स पे कर दिया ना, मेरा वो आइटम बिका ही नहीं है, तो अल्टीमेटली वो टैक्स बर्डन मेरे पास आ गया था. Tax collection. In direct tax is collected after the income for a year is earned or valuation of assets is determined on the valuation date. Okay. जैसे अभी हमने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स का तो एक टाइम है ना, ज्यादातर हम ईयर एंड पे करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस. However, पहले क्या होता था कि हम एक साल में इकट्ठा टैक्स पे करते थे, जैसे मैंने अभी बताया 31 जुलाई इज द लास्ट डेट. बट अभी कुछ 10-15 साल पहले से कुछ इसमें रूल चेंज किया, क्योंकि जिनके पास बहुत बड़ी इनकम है और लेट्स से मेरे किसी की इनकम 25-30 लाख रुपया साल की है, उसकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम 3-4 लाख रुपया हो गई साल की. अब 3-4 लाख रुपया उसने सब खर्च कर दिया साल में. अब लास्ट में जुलाई तक उसके पास टैक्स बचा ही नहीं है पे करने के लिए. तो जैसे कहते हैं ना, आपने किसी को पैसा दे दिया और उसने कहा यार अब तो बचा ही नहीं है मेरे पास पैसा, वो सब उसने कंज्यूम कर लिया कहीं ना कहीं. तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में भी ये कर दिया है कि एडवांस टैक्स का एक सिस्टम बना दिया है. दैट वी विल आल्सो स्टडी कि एडवांस टैक्स में एवरी क्वार्टर इफ आई फील दैट माय इनकम इज 3-4 महीने के बाद ही मेरी इनकम इतनी हो गई है कि टैक्स ब्रैकेट में आ गई है, भाई 2.5 लाख रुपया साल की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, मेरी 3 महीने में इनकम मेरी 5-6 लाख रुपए हो गई, तो ऑलरेडी मेरा टैक्स की लायबिलिटी बन गई है. सो आई एम सपोज टू पे द एडवांस टैक्स आफ्टर एवरी क्वार्टर. So indirect tax is collected after the income for a year is earned. Generally, we say that, and then finally I submit my income tax return at the end of the year. Whereas in the case of indirect taxes, the tax is to be deposited at the time of sale or purchase or rendering of services. Here you can't wait for the year end. So on day-to-day basis, the sale is happening. Say in a large store, day-to-day the sale is happening. So day-to-day the tax also has to be deposited with the concerned authorities. But here in direct taxes, it is generally after an year, and in certain cases, yes, after every quarter. It's not on day-to-day basis. Whereas in indirect taxes, it could be on day-to-day basis because it is just based on sales and purchases. I hope this basic concept is clear now between direct and indirect taxes. Yes or no? Yes, sir. Good. सर एक क्वेश्चन था सर इसमें मुझे. बताइए. सर ये डायरेक्ट टैक्स में अगर हम क्या कहते हैं एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो मार्जिनल टैक्स का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा सर इसमें, क्योंकि टैक्स ब्रैकेट को एक्सीड ही नहीं करेगा. जैसे मैं 5 लाख के ब्रैकेट में जाऊंगा, मैं 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो टैक्स होता है वो दे दूंगा, और फिर से जब मेरे 5 लाख और हो जाएगा मैं फिर से 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में टैक्स दे दूंगा. नहीं, अच्छा. नहीं, वो उसमें एक फिक्स रेट है. एडवांस टैक्स में एक फिक्स रेट के हिसाब से है. मैं 1 मिनट अभी चेक करता हूँ उसको, शायद 10% के हिसाब से है, वो आपको पे करना होता है. लास्ट में आपका कोई अगर रिफंड आपने ज्यादा पे कर दिया देन यू कैन, कई बार ऐसे होता है अगर आप बिजनेस में हैं, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स आपके बहुत अच्छे गए. स्पेशली बिजनेसेस के साथ क्या होता है, फर्स्ट 2 क्वार्टर, अभी जैसे अगर आप बात करो ये क्वार्टर बहुत खराब गया. अब फॉर एग्जांपल अभी अगर 2021 का ये भी क्वार्टर खराब जा रहा है, अभी उनका अप्रैल मई जून का क्वार्टर भी कोई ज्यादा सेल थोड़ी हुई है लोगों की. तो कई बार क्वार्टर्स लास्ट के खराब हो गए और आप ज्यादा टैक्स पे किया हुआ है, तो यू कैन गेट द रिफंड. So it's not based on, as far as individual is concerned, it is not based on your marginal tax. It is based on a flat rate. You have to pay that tax, say at the rate of 10%. And then afterwards, when at the end of the year you compute your tax according to your slab rate, and then whatever extra you have to pay, you pay that. और अगर आपका निकलता तो आपको मिल जाएगा, राइट? यस सर. और जैसे क्या कहते हैं, मैं अगर किसी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखता हूँ तो उसमें क्या कहते हैं जो टैक्स रेट कैलकुलेट होता है वो हमेशा वेरी करता है हर साल. मतलब एक आपने कहा था सर्टेनिटी होती है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं इतना ही टैक्स पे करूंगा, लेकिन कभी वो 20% होता है तो कभी वो 35% होता है. तो इतना वेरी कैसे करता है सर वो टैक्स रेट? That depends on the every year's budget, na. So every year's budget,
the government, the finance minister has that power, Sir, or but the government has that power परसेंटेज to. तो सेम रहना चाहिए ना। अगर मैं हाँ। 30% अगर मेरा कॉर्पोरेट टैक्स 30% है तो मैं 30% हर साल दूंगा। हाँ, वो परसेंटेज कैसे चेंज हो जाती है? मैं जब टैक्स कैलकुलेट करता हूँ मेरे अर्निंग बिफोर टैक्स पे, जब मैं टैक्स कैलकुलेट करता हूँ टैक्स रेट, तो वो हर बार अलग आती है हर साल की। मैंने बहुत सारी कंपनीज में सर ये देखा है। टैक्स रेट हर साल इतना कम, कितना फर्क होता है? इतना फर्क तो नहीं होता सर जैसे सर इनकम स्टेटमेंट में देख रहा था एक कंपनी का परसों, उसका क्या सर रोजरी का जो उनका आईपीओ आया अच्छा, है अभी। हाँ अभी आईपीओ आया, ओके। यस सर, सर उनका देख रहा था मैं, तो उन्होंने उनका जो क्या कहते हैं पिछले 3 साल के वो इनकम स्टेटमेंट में उनका जो टैक्स रेट है, जो वो टैक्स पे कर रहे हैं इबिडा पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट पे, उस पे Okay. अगर मैं टैक्स रेट कैलकुलेट करूंगा तो कभी वो 22% होता है, तो कभी वो 33% होता है, कभी वो 28% होता है, तो बहुत वेरी करता है वो। तो टैक्स रेट तो सेम होना चाहिए ना। कॉर्पोरेट टैक्स मेरा 30% है तो मैं हर साल 30% दूंगा। हाँ, यस। तो पता ये नहीं, ये टैक्स तो आई डोंट नो। नहीं, अब पता नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है। सर आप उठाओ सर, कोई भी कंपनी का उठा लो सर इनकम हाँ, स्टेटमेंट, और 2 साल का सर कंपेयर कर लो, हमेशा टैक्स रेट डिफरेंट होगा। नहीं वो तो हर साल के टैक्स रेट पे, एनीवे इसको देखेंगे बाद में, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। एक मिनट, मैं अभी ना एक रिसेंट रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, एक डिलॉइट की मेरे पास रिपोर्ट है। अभी तो क्या है कि अप टू 250 करोड़ इस साल के जो बजट में गवर्नमेंट ने किया है, सॉरी अप टू, पहले था 250 करोड़, अप टू 400 करोड़ कंपनीज के लिए टैक्स रेट इज 25%, जिनका टर्नओवर 400 करोड़ तक का है। और 400 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर आता है तो 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। लास्ट ईयर ये गवर्नमेंट ने किया था अप टू 250 करोड़, और उससे पहले ईयर में था 30% फ्लैट रेट था फॉर कंपनीज। तो ये फर्क आया 2018 तक, फॉर ऑल कंपनीज द टैक्स रेट वाज 30% कॉर्पोरेट टैक्स। In 2019 budget, they said companies with the turnover of 250 crores will pay 25%, rest will pay 30%. और इस साल गवर्नमेंट ने किया up to 400 crores। तो 400 crores तो जितना MSME सेक्टर था वो सारा 25% के ब्रैकेट में आ गया। और मजे की बात ये, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उनका फ्लैट रेट, पार्टनरशिप फर्म में बहुत छोटा भी, उसका अगर टर्नओवर सिर्फ 2 लाख रुपया भी ये साल का, तो वो 30% देगा, उनके लिए 30% है। और कंपनीज के लिए 25% कर दिया गवर्नमेंट ने 400 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर। तो ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं, वो फर्क हो सकता है। देखो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे तो वी विल ऑल अदर थिंग्स विल आल्सो कम। एलएलपीज का अलग रेट है, पार्टनरशिप का अलग रेट है, कंपनीज के लिए डिफरेंट रेट्स है, देन इट इज बेस्ड ऑन टर्नओवर। ठीक है ना? क्या नाम तुम्हारा, क्या कौन बोल रहा था अभी? कमलेश? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, तो ये चीज है, हर एक कंपनी के हिसाब से हर साल गवर्नमेंट चेंज भी करती रहती है इसको, रेट्स को। ये थोड़ा सा हम और बेसिक थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे कि थोड़ा सा हमारा एक ओरिएंटेशन बन जाएगा। See, taxpayers generally plan their affairs so as to, because the name is tax planning. So everybody wants to plan their affairs, their income affairs, so that they have a least incidence of tax. Whether you are an individual, whether you are a business firm, or whether you are a business company. So taxpayer spares no efforts in maximizing their profits and attracting the least incidence of tax. Whereas the tax gatherer or the tax authorities, they try to, their sole objective is to, collect maximum amount of taxes. So there are 3 or 4 terms which we use, called tax evasion, tax avoidance, tax planning. What do you mean by tax planning? Because the name of our subject is also corporate tax planning. So what is tax planning? So like formally we say it's an arrangement of one's financial and economic affairs by taking complete legitimate benefit of all deduction, exemption, allowances and rebates, so that the tax liability reduces to a minimum. टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि भाई हमें, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो हम किस तरह से अपने टैक्स को कम से कम कर सकते हैं। वो मैं आपको थोड़ा इनकम टैक्स भी पढ़ाऊंगा,
इनकम टैक्स में कुछ हमारे सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे सेक्शन 80C बना हुआ है। 80C में गवर्नमेंट ने कहा है कि 1.5 लाख रुपीस तक उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स प्लान दिए हुए हैं कि अगर आप इन इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते हो पैसा, जिसकी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर में है 1.5 लाख, तो जितनी आपकी इनकम है साल की उसमें 1.5 लाख रुपीस लेस कर दो, तो आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम 6 लाख रुपया है साल की, यानी 50,000 रुपया महीना हो गई एवरेज, तो 6 लाख रुपीस में मैं टैक्स ब्रैकेट में आ जाता हूँ। 6 लाख में मैं 1.5 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, जैसे मेरा ईपीएफ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो पैसा कटा है, या मैंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना अकाउंट खुलवाया है, या मैंने गवर्नमेंट के एनएससीज खरीदनी है पोस्ट ऑफिस से, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या मैंने 5 साल की एफडी करा दी है, तो इस तरह से, या मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्लान में जो प्रीमियम दिया है, तो इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा वो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें किसी एक में या सब में मिला करके मैंने 1.5 लाख, तो 6 लाख माइनस 1.5 लाख कितना हो गया? 4.5 लाख। 4.5 लाख में फिर एक और सेक्शन है, सेक्शन 80CCD 1B, सब सेक्शन 1B। वो क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। उसमें अगर मेरा अगर पर्सनली मैंने कोई रिटायरमेंट प्लान लिया है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, और मैं एक साल में 50,000 रुपए तक उसमें जमा कराता हूँ, तो वो भी मेरा अलग से लेस हो जाएगा। तो 4.5 लाख में वो मैंने 50,000 रुपया वो लेस किया, तो 4 लाख। तो इस तरीके से हम लोग डिडक्शंस बोलते हैं इनको, तो जो डिडक्शन हो जाएगी। सो आई एम, एक तरफ मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो गया, जो पैसा मेरे फ्यूचर में काम आएगा, और दूसरा मेरे को टैक्स में भी बेनिफिट हो गया। तो मैं इस तरह से करके अपना टैक्स लायबिलिटी बहुत कम कर सकता हूं या जीरो कर सकता हूं। सो दीज आर कॉल्ड डिडक्शंस। बाय अवेलिंग दीज डिडक्शंस, देन एग्जेम्पशंस। फॉर एग्जांपल, पीपीएफ में हम जो पैसा हमें मिलता है, अगर पीपीएफ अकाउंट 15 साल का होता है, जब वो 15 साल का अकाउंट खत्म हुआ, आपको जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री इनकम होती है। सो इट इज एग्जेम्प्टेड इनकम। तो आप अगर ये सोच के ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो जिसकी इनकम टैक्स फ्री है, तो आपने प्रॉपर्ली प्लान किया है ना उसके लिए, तो वो एग्जेम्प्टेड इनकम हो गई। फॉर एग्जांपल, सेविंग बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है 3%, 3.5%, जो भी आपको इंटरेस्ट का रेट है। जो आपको रूल ये है, सेक्शन 80 TTE में सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट एक साल फाइनेंशियल ईयर का इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो आपको ये चीज देखनी है, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उस इनकम को 10,000 रुपए तक का जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है ना। सिमिलरली, व्हेन यू इन्वेस्ट इन शेयर्स और इन म्यूचुअल फंड्स, यू आल्सो गेट डिविडेंड्स। Dividends is nothing but the share in the profit of the company. So your share, so whatever dividends you have got is exempted up to 10 lakh rupees in a financial year. तो 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड्स जो है वो exempted income है। तो आप पूरे प्लान से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में करते हो जहां से आपकी इनकम, कुछ इनकम आपकी एग्जेम्प्टेड हो गई, कुछ आपने इन्वेस्ट कर दिया, डिडक्शंस ले लिए, कुछ अलाउंसेस होते हैं जो कि टैक्स फ्री होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउस रेंट अलाउंस अप टू सम एक्सटेंट देयर इज अ फॉर्मूला, इट इज exempted। देन देयर इज एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है सैलरीड वालों के लिए। अभी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है 2021 का, इसमें 50,000 रुपया आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सैलरी आपके 50,000 रुपए स्ट्रेट अवे डिडक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली, कुछ अलाउंसेज होती हैं, लीव ट्रैवल अलाउंस होते हैं, आपको मिलता है, LTA मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है। तो कुछ अलाउंसेस वो आपको देखना पड़ेगा कितने अमाउंट तक वो टैक्स फ्री है। कुछ रिबेट्स भी मिलती हैं, रिबेट्स भी हम पढ़ेंगे। एक रिबेट होता है, सेक्शन 87A है, उसमें एक रिबेट मिलती है। अभी रिबेट क्या है? वैसे तो लिमिट है, पहला 2.5 लाख रुपया इनकम टैक्स का इस टैक्स फ्री, अगला 2.5 लाख के ऊपर आपका 5% लगता है। लेकिन एक रिबेट भी दिया गवर्नमेंट ने, अगर आपकी इनकम 5 लाख है, सिर्फ एग्जैक्टली 5 लाख है, तो आपको एक 12,500 रुपए का एक रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। तो पहला 2.5 लाख इज 0% रेट, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर आपका 5% लगा, तो 2.5 लाख का 5% कितना हो गया टैक्स? 12,500। एम आई ऑडिबल? यस सर। तो 5 लाख मेरी इनकम है, पहला 2.5 लाख इज 0%,
Next 2.5 lakh is 5%, which so my tax liability comes out to 12,500. But government gives a rebate that if because people whose income is up to 5 lakh rupees, they will get a rebate up to 12,500. So मेरी tax liability बनी 12,500, less rebate का मतलब होता है discount, less discount. So my tax liability becomes 0. So this is called rebate. So therefore, when I know all these rules, that is, and accordingly I am earning my income and I am investing my money in such suitable instruments so that my tax liability is minimum. This is called tax planning, and this is totally legal way of saving tax, because because government has made such rules and regulations wherein people can accordingly arrange their financial affairs and avail all these benefits of deductions, exemption, allowances, rebates. So tax laws are fully complied within its framework. So I'm not doing any tax ki chori, because I am just following the government rules, and then accordingly I am reducing my tax liability, tax output. So there is nothing wrong in it. So tax planning is always welcome. Not taking form of colorable devices. मैं कोई भी इस तरह का गलत काम नहीं कर रहा हूँ. Having no intention to deceive the legal spirit of the law. Planning of tax must be correct both in form and substance. So similarly for individuals, similarly for business firms also, a proper tax planning has to be done. अब जैसे बिजनेस में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, you have to understand what are the other corporate laws, and accordingly you try to reduce your tax liabilities. What are the objectives of tax planning? So that we have more disposable income at our disposal, so that we can get a shield against high taxation. जैसे rates हैं, first 2.5 lakh rate is 0%, next 2.5 lakh rate is 5%, next 5 lakh straight away the rate is 20%, and then balance is straight away rate is 30%. So if I do my investments accordingly so that my deductions, I can avail of deduction, so I will have a shield against high taxation of, I will not go into 20% or 30% bracket. I will remain in 5% bracket. अगर मैं सब पैसे वो खर्च कर दूंगा तो मेरे को फिर 20 या 30% टैक्स भी देना पड़ेगा. Inequity in tax burden, maximum deduction allowed to business persons, minimum to others, avoidance of litigation and curb on tax evasion. So this is tax planning. There is tax, अभी हम tax evasion की बात करते हैं. It is the opposite of tax planning. Tax evasion is in simple terms the theft of tax. Basically, theft in the sense that you are trying to evade the taxes, illegally avoiding the tax. It's called tax evasion. For example, I don't show any some incomes. When we sell the property, let's say I have sold my property in 60 lakh rupees, whereas on paper I have shown in just 30 lakh. So 30 lakh rupees I have taken in black, and most of the black money is generated from the property itself. तो मैंने क्या किया, टैक्स को ही तो चोरी की है उसमें. तो अदरवाइज मेरे को कैपिटल गेन देना पड़ता. सपोज मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 20 लाख की और मैंने सेल की है 60 लाख की, तो कितना मेरा गेन हो गया प्रॉपर्टी में? 40 लाख का. सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन. द परचेज कॉस्ट 20 lakh, the sale cost of property 60 lakh. So the balance between purchase cost and sale cost is 40 lakh. So 40 lakh I have to pay the tax, capital gain, and capital gain is, वो मैं रेट्स बाद में बताऊंगा आपको, उसको समझाना पड़ेगा, उसको स्ट्रेट अवे में रेट्स नहीं. लेट्स से रेट इज 20%. इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद लेट्स से 20% रेट है, तो 40 लाख पे 20% कितना हो गया? 8 लाख रुपया हो गया. अब 8 लाख देना इट्स नॉट सो इजी. 8,000 भी देना बड़ा मुश्किल होता है. 8 लाख रुपया मैं टैक्स दूंगा. तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं प्रॉपर्टी को कम अंडर वैल्यू दिखाता हूँ कि मैंने सब प्रॉपर्टी में 60 लाख की थोड़ी दिखाऊंगा, मैंने 20 लाख की 30 लाख में दिखाऊंगा, 10 लाख के ऊपर दिखाऊंगा कैपिटल गेन में, राइट. तो उसमें ये क्या है, दिस इज क्लियर कट केस ऑफ टैक्स इवेजन. सो अनट्रू स्टेटमेंट, नोइंगली सबमिटिंग मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स. फॉर एग्जांपल, बिजनेस पीपल दे विल बाय गुड्स विदाउट बिल. सो जब गुड्स का बिल ही नहीं है, मेरे पास वो स्टॉक है ही नहीं मेरे अकाउंट्स में, तो मैं जीएसटी भी मैं पे नहीं कर रहा हूँ उसका.
और कस्टमर को से मैं चार्ज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर को भी मैं सस्ता दे रहा हूँ, तो कस्टमर का भी फायदा है। कई बार आप बिल मांगते हो, शॉपकीपर से बोला सर आप बिल लोगे तो जी आपका टैक्स लग जाएगा, विदाउट बिल में आपको ये रेट लगेगा, तो कई बार आप भी बोल देते हो यार छोड़ो यार, तू मुझे क्या करना है, बिल ऐसे ही दे दो। होता है कि नहीं? यस सर, यस सर। यस सर। तो क्या ये क्या है, टैक्स की चोरी है? हाँ, हालांकि अभी 2-3 साल से जब से जीएसटी आया है, ये कहा जा रहा है कि काफी डिफिकल्ट हो गया बिजनेस पीपल के लिए, बिकॉज एवरीबडी हैज कम अंडर नेट, और ये सारा सब क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है सारा जीएसटी का, और आप बिजनेस कर ही नहीं सकते जब तक आप जीएसटी का नंबर नहीं लेते हैं, तो वो हर चीज कहीं ना कहीं ट्रैक हो रही है, बिकॉज एक पूरी चेन का सारा इंफॉर्मेशन जा रही है गवर्नमेंट के पास। इट्स लाइक MIS सिस्टम है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सारा गवर्नमेंट के पास आ रहा हो, कहीं ना कहीं ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी द पीपल हु आर स्टिल इवेडिंग इट, दे आर मोर मच स्मार्टर देन दी सिस्टम। तो अभी भी हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते 100% फुल प्रूफ सिस्टम बन गया है, बट कम हो गया पहले से जब से जीएसटी आया है। लेकिन पहले तो बहुत खुलेआम चल रहा था, कोई बिल से कोई काम करता ही नहीं था। सेल कर रहे हैं 1 साल की 2 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की दिखा रहे हैं पेपर्स में, सिर्फ 20 लाख 30 लाख रुपए की सेल, तो सारा क्या है, सेल टैक्स की और उसकी चोरी हो रही थी। जब सेल टैक्स की चोरी हो रही है तो इनकम भी कम होगी, एक तो उधर से चोरी की, फिर बिजनेस की इनकम भी कम होगी तो इनकम टैक्स भी कम देंगे, क्योंकि इनकम भी कम हुई है, मेरे पास वो सामान था ही नहीं। सो दिस इज क्लियर कट केस ऑफ टैक्स इवेशन, suppression of facts, not maintaining proper accounts of income कम दिखाते हैं, omission of material facts on assessment. Material facts आपने इंश्योरेंस में पढ़ा था, material facts are those facts which are important for the other authorities to take a judgment. So assessment में आपके material facts क्या थे, आपने उतनी सेल नहीं दिखा रहे हो, या आप अपनी सैलरी, कई बार इवन एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स में भी होता है, एम्प्लॉय को सैलरी ज्यादा मिल रही है ऑन पेपर कम दिखाई जा रही है, या मैं कहीं भी शेयर्स कर रहा हूं तो मैं कहीं उसका रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहा कि शेयर से मेरी क्या इनकम हुई है, एक्स्ट्रा इनकम क्या हुई है। वैसे इंडिया में सबसे ज्यादा जो टैक्स देता है वो सैलरीड क्लास देता है, बिकॉज अ पर्सन, सैलरीड क्लास पर्सन हैज वेरी लिमिटेड ऑप्शन टू evade the taxes, because most of the things are transparent. It is in the business class where the maximum amount of tax evasion takes place. Do you agree with this? Yes sir. So salaried class के बाद इतना ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं होती कि that he can do tax evasion. So therefore, then हाँ, एक और चीज़ है इसमें, tax avoidance एक word हम use करते हैं. What is tax avoidance? There is a thin line between tax avoidance and tax evasion. For example, I am writing over here, it's reducing or negating tax liability in legally permissible ways and has legal section. It's sound law and certainly not bad morality. Anyway, ये क्या है? Tax avoidance is let me give you a day-to-day example. Salaried class में कैसे होता है, हम tax avoidance कैसे करते हैं कि let's say किसी employee को कंपनी से medical reimbursement मिलता है, बट वो मेडिकल रीइंबर्समेंट का क्या रूल होता है, दैट यू हैव टू सबमिट द एक्चुअल बिल्स। मेडिकल बिल्स आप जब सबमिट करते हैं देन कंपनी से आपको रीइंबर्समेंट मिलता है। और उसमें अभी तक, पहले ये रूल था, अभी पिछले साल तक, कि साल का उसमें 18,000 रुपए तक का आपका जो रीइंबर्समेंट मिल रहा है वो टैक्स फ्री होता था। 18,000 यानी कि ऑन एन एवरेज 1,500 रुपया पर मंथ का। तो अब जैसे आप यंग एम्प्लॉई हैं, कल को आपको जॉब मिलती है, अब आपको एज ए इंडिविजुअल आपको इतना मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, आपको इतना बीमार पड़ते नहीं हो, आप यंग आदमी हो, बट आपका वो अवेल जब कंपनी से मिल रहा है वो आपका बेकार जाएगा। तो आप क्या करते हो, किसी के भी नाम बिल बनवा लेते हो, अपने भाई का आपके उसके में नहीं होता, आपके यहाँ पेरेंट्स को होता है, कोई आपने ब्रदर्स को बोल दिया भाई आप बिल बनाओगे मेरे नाम से बनवा लेना। तो वो क्या है, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस, दैट इज एथिकली इट इज रॉन्ग, देयर इज अ द लूप होल इन द लॉ, बट आप दूसरे के नाम से, या आप मेडिसिन की दुकान पे या आप उससे बिल बनवा लेते हो, उसको टैक्स दे करके, वो कहता है सेल टैक्स दे दो जी, मैं आपके नाम बिल बनवा लूंगा। तो इस तरह की जो चीज है वो आप लीगल बाउंड्रीज में रह के करते हो कि आप पकड़े नहीं जा सकते उसमें, बट दैट इज अ केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। तो एथिकली इट इज नॉट राइट। इसको बल्कि मैं थोड़ा सा चेंज मैंने कल किया था, वो एक्चुअली दूसरी स्लाइड खुल गई दूसरी स्लाइड से। इट्स सर्टेनली इट्स
not bad morality, is and unethical है ये actually. For example, एक और एग्जांपल देता हूं आपको. Let us say कमलेश की बात करते हैं. कमलेश, आप कहां से बिलोंग करते हो? सर गुड़गांव. तुम गुड़गांव से ही हो? यस सर. अच्छा. चलो, आज तुम गुड़गांव से हो, कल को तुम्हारी जॉब लेट अस से हाँ गुड़गांव में ही लग जाती है तुम्हारी जॉब. चलो, अच्छा एग्जांपल तुम्हारा ही मिल गया. तुम्हारी गुड़गांव में जॉब मिल जाती है और एंड यू गेट अ एचआरए फ्रॉम योर कंपनी. सर ये कर रखा है सर मैंने. क्या कर रखा है? ले रहे हो सर? मेरे ऑफिस में सर एचआरए का वो क्या कहते हैं एग्जाम्पशन होता था अवॉइडेंस, तो हम क्या कहते हैं नकली बिल बनाते थे रेंट का और देते थे. हाँ, तो अब आप जैसे आप अपने फादर के पास रह ही रहे हो भाई. यस सर. तो जैसे रह रहे हो तो आपको एचआरए मिल रहा है, और एचआरए में यूजुअली कंपनीज say that yes, we are giving HRA to everybody, whether you are living in rented house or not, but this is a standard thing that we are giving you HRA. Let's say you are getting some HRA, let's say 7,000-8,000 rupees per month. अब वो HRA क्या होता है कि if you are not paying actual rent, then all of your HRA becomes taxable. मिलेगा तो, but आपका सारा taxable income माना जाएगा. But if you are actually paying the rent, then there is a formula कि आप वो आपका non taxable हो सकता है, क्योंकि वो आपकी जेब में तो आया नहीं ना, आपने दे दिया. उसके लिए आपको रेंट रिसिप्ट चाहिए. तो आप क्या करते हो, आप अपने फादर से बोल सकते हो कि फादर आपके नाम रेंट रिसिप्ट बना देंगे. भाई द हाउस इज इन द नेम ऑफ योर फादर एंड योर फादर कैन, कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको लीगली कि मैं दे रहा हूँ अपने डैड को. आई एम लिविंग इन हिज हाउस एंड नाउ सिंस आई हैव स्टार्टेड अर्निंग, सो आई एम पेइंग रेंट टू माय डैड. व्हाई शुड नॉट आई पे? दिस इज आई हैव गॉट अ रिसीप्ट. Only thing is that आपके फादर को अपनी इनकम में दिखाना पड़ेगा उसको. But it is sound law. It is within the law. It cannot be challenged. I mean, it will be difficult to challenge. So that is called, such kind of situations are known as tax avoidance. That within the precincts of law, you have found some loopholes, and then you are trying to reduce your tax liability. Right? I hope you people have understood these terms called. Now, tax planning. Sometimes people ask what is the difference between tax planning and tax management. Tax planning is what I told you. Tax planning means at the beginning of the year you have to decide कि for individual or for your business firm, for your company, आपको क्या क्या चीजें बनानी चाहिए, किस तरीके से आपको टैक्स की प्लानिंग करें जिससे कि हमारे टैक्स लायबिलिटी शुड बी, टैक्स इंसिडेंट शुड बी मिनिमम. दैट इज टैक्स प्लानिंग. दैट वेयर वी हैव टू डू इन्वेस्टमेंट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी शुड मेक. कुछ प्रोडक्ट्स में जीएसटी ज्यादा है, कुछ प्रोडक्ट्स में जीएसटी कम है, तो हम वो वाले प्रोडक्ट्स बनाएं जिसमें जीएसटी कम हो, जीएसटी ज्यादा है और वो प्रोडक्ट सेल भी नहीं होते. तो कई बार यू हैव टू डू योर प्लानिंग, योर मार्केटिंग प्लानिंग एंड योर पोर्टफोलियो प्लानिंग in such a from the point of view of tax also. फिर डिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ करें, स्टेट टू स्टेट. अगर दूसरी स्टेट में भेजेंगे तो उसके अंदर एक सीजीएसटी लग जाता है, एक्स्ट्रा आईजीएसटी लग जाता है. अगर आप सेम स्टेट में करते हो तो टैक्स लायबिलिटी कम होती है. तो ये सारी चीजें आपको प्लान करनी होती हैं. टैक्स प्लान. टैक्स मैनेजमेंट इज एज एन इंडिविजुअल. मैं अपनी टैक्स प्लानिंग करूंगा कि यार कितना पीपीएफ में करना है, कितना शेयर्स में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए रखना है शेयर्स या लॉन्ग टर्म के लिए. लॉन्ग टर्म में देख, जैसे मैं अगर 1 साल के बाद अपने शेयर्स बेचता हूं तो मेरा वो टैक्स फ्री है. 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए तक का मेरे गेन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है. तो उस हिसाब से मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट की. वेयरएज टैक्स मैनेजमेंट इज, मेरे को कोई भी रिसीप्ट्स रखनी है, मैंने जो भी पीपीएफ में इन्वेस्ट किया उसकी मेरे पास रिसीप्ट होनी चाहिए. मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लान में पैसा डाला है तो उसकी मेरे पास प्रीमियम की रिसीप्ट होनी चाहिए. मेरे को कैसे कैसे कंपाइल करना है, कब मेरे को एडवांस टैक्स पे करना है. सो कीपिंग अकाउंट ऑफ ऑल पेपर वर्क, ऑल डॉक्यूमेंटेशन, डू द प्रॉपर फाइलिंग. अदरवाइज ऐसा लास्ट में मेरे को कुछ मिलेगा नहीं. मेरे को कहाँ से सर्टिफिकेट लेना है, मैंने कहीं पे काम किया था, कहाँ से फॉर्म 16 लेना है. बैंक में मैंने एफडी में इन्वेस्ट किया है तो फॉर्म 15 जी भरना होता है. सीनियर सिटीजनों को फॉर्म 15
एच भरना होता है। तो ये सारी चीजें इज कॉल्ड टैक्स मैनेजमेंट। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स मैनेजमेंट इज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। टैक्स मैनेजमेंट रिलेट्स टू पास्ट, दैट इज असेसमेंट प्रोसीडिंग, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन कब करनी है, अपील करनी है, आपके ऊपर टैक्स लग गया आपकी बिजनेस फर्म के, उसकी अपील करनी है, या टैक्स रिटर्न आपसे गलत फाइल हो गई तो उसका रिवीजन आपने रिटर्न भरनी है, filing of return in time on the basis of updated records. Tax management deals with specific activities such as filing of returns of income on time, drafting appeals, deduction of tax at source, किसका टैक्स काटना है, TDS काटना है, updating records from time to time. So as a result of effective tax management, penalty, penal interest and prosecution etc. can be avoided. So tax planning is in terms of what kind of investments you have to do, what kind of income you have to generate, right? What kind of products you should make. Whereas tax management is keeping the records of all those documents, when to deduct TDS, filing returns. You must know the rules. As a business firm, as a company, I have to, if I am a listed company, I have to publish my quarterly returns in at least 3 national newspapers. That is the rule of SEBI as well as the stock exchange. इसलिए हर क्वार्टर के बाद आपकी बैलेंस शीट्स न्यूज़पेपर्स में आती हैं, और एटलीस्ट 3 डेली न्यूज़पेपर्स में आनी चाहिए। तो क्वार्टरली रिटर्न्स में आपको कब ऑडिट कराना है उसका, दैट इज ऑल कॉल्ड टैक्स मैनेजमेंट। I hope you are able to understand the difference between tax planning and tax management. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. ठीक है, तो अब हम इसको we have another 20-25 minutes left. So this was a basic, you can say, orientation about taxation, direct tax, indirect taxes, tax planning, tax avoidance, tax evasion. Okay. हाँ, अच्छा, मैं यार ये पढ़ना भूल जाता हूँ चैट में। दिव्या भारती had written tax avoidance example is contributing to a retirement account with pre-tax dollars and claiming deductions and credits. Contributing to a retirement account with pre-tax dollars. ये क्या समझाएंगी आप दिव्या भारती, क्या है ये? What is pre-tax dollars and claiming deduction and credit? ये थोड़ा समझाइए जरा हम लोगों को। हाँ जी, मिस दिव्या भारती, देयर वाज अ हीरोइन आल्सो, आपके नाम की एक हीरोइन हुआ करती थी। दिस इज विकिपीडिया। सुसाइड कर दिया था शायद। हाँ, यस यस। हाँ दिव्या भारती, कहाँ गई तुम? समझाओ भाई, ये क्या है प्री टैक्स डॉलर? ये हमारी समझ में नहीं आया। टू अ रिटायरमेंट अकाउंट विद प्री टैक्स dollars and claiming deduction and credit. You can speak, you can put your mic on unmute. चलिए, anyway, मनीष कुमार is saying this is Wikipedia. विकिपीडिया से देख के लिखा है क्या? अब आई एम ट्राइंग टू शो, कौन सी स्लाइड आपको शो करें? एक मिनट, आपको ना, you are able to see this slide, no? Some important, some basic definitions. Yes, sir. Person, बड़ा बेसिक चीज पहले क्योंकि समझ में नहीं आएगी ना, एडवांस चीज समझ में नहीं आएगी। देखिए, इनकम टैक्स के हिसाब से who is a person? A person may be an individual, a person may be a business firm, a proprietorship firm, a partnership firm. A person may be a group of people. They call a group of people. Sir, hello. Yes, please. Yes. Sir, Swati here. Yes, Swati. Sir, like when we will
when we will start our job, so sir हमें भी end में like we have to pay income tax, right? Yes, if you So come under in the income tax. month of March, I think in the month of March, so sir वो income tax जो हम pay करते हैं, that's go to Indian government ना? Yes, Indian government, central government. Income tax goes to central government. Income tax goes to central government only. Sir, so that's depend upon the salary of an individual, na, that how much income tax will be deducted Yes. from their salary. Absolutely. Absolutely. But मैं इसका ना ये PDF खुल गया. I am just trying to open the. ये बार-बार PDF फाइल में खुल रहा है. Now you can see the slide. Basic principles of tax. Some of the important definitions contained in the Act are person. सबसे पहले तो person, as I said, person can be an individual, can be a firm, can be an association of persons. ये मैं इसमें यहाँ आपके सामने लिख भी रहा हूँ. Person means an individual, maybe a firm, maybe a association of persons, AOP, maybe a body of individuals, maybe a HUF. अब इनके क्या मतलब है? देखिए, इंडिविजुअल तो हम और आप हो गए, मुकुल जैन या स्वाति सिंह, कमलेश, etc. Firm may be a proprietorship firm, a partnership firm, even a company also. AOP है, होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, और एक होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स पहले समझते हैं. BOI. लेट अस से आप सब लोग स्टूडेंट हैं and let us say you organize a event in your college. In many college schools also, you know, when we were also in school, we used to organize fete. School में एक fete हुआ करता था, मेला kind of things. Stalls used to be set up, some hoopla stalls, some game stalls, some खाने पीने का stalls and all. So they the school management and college management somewhere they tell the students to arrange the money, अपने tickets बेचो, coupons बेचो, पैसा collect करो, and whatever is the profit will belong to you. So body of individuals means these individuals have collected together and they have done some event, या उन्होंने कोई show organize किया, they have called some singer और उसके tickets रख दी, उससे जो भी पैसा आया, कुछ खर्चा हो गया, कुछ profits आ गया, तो आपस में बांट लेंगे. वो students या कोई भी student हो सकते हैं, individual हो सकते हैं. तो हमने कोई परमानेंट कोई बिजनेस फॉर्म नहीं बनाई थी, बट वो एक टेम्परेरीली हमने एक इंडिविजुअल्स इकट्ठे हुए, उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. इनकम टैक्स लॉ सेज दैट इवन इफ यू हैव मेड सम प्रॉफिट, यू आर सपोज्ड टू पे द टैक्स एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. सो इनकम टैक्स की नजर में उस सबको पर्सन बोला गया है. देन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. पर्सन्स में क्योंकि फर्म भी आ गई, फॉर एग्जाम्पल मार्केट एसोसिएशन है और वहां बहुत सारी शॉप्स हैं. वो कहते हैं कि भाई हम होली पे एक बहुत बड़ा इवेंट करेंगे, होली पे होली मिलन का कार्यक्रम करेंगे, होली मेला लगाएंगे, उसमें स्टॉल होंगे, खाने पीने के होंगे, सब कुछ चीज होंगी, कलर्स भी होंगे और उसमें शो होगा, हम बहुत अच्छे कवियों को बुलाएंगे, हाथ से कवि सम्मेलन करेंगे. तो उससे सारे इवेंट से कुछ पैसा बन गया, उनका प्रॉफिट हो गया, तो वो कहलाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. उसमें इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, उसमें बिजनेस फर्म्स भी थी, शॉपकीपर्स भी थे, उन सब ने मिलकर कोई इवेंट किया और उससे पैसा कमाया. दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. So they are also supposed to pay the tax if they have made any income. Similarly, there is a concept of HUF. Now, in corporate tax planning, it is also very essential to understand what is the concept of HUF or Hindu undivided family. If anybody knows about HUF, you are most welcome to speak before I tell you. किसी ने पढ़ा होगा कभी बीकॉम वगैरह में, इनकम टैक्स वगैरह पढ़ा होगा, तो बताइए. यस सर. हाँ बताइए सर. फैमिली बिजनेस होता है जिसमें एक कर्ता होता है और बाकी उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं. ओके.
सर बाय बर्थ पार्टनर हो जाता है वो। ओके, क्या जरूरी है उसमें कि बिजनेस फर्म ही हो हमारी तभी वो एचयूएफ कहलाएगी? और सर जो करता रहता है सर उसका अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है, और जो बाकी लोग रहते हैं उनका लिमिटेड लायबिलिटी रहता हाँ, ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताए वो सही है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपसे कैन एचयूएफ इट इज नेसेसरी टू डू अ बिजनेस अंडर, बिकॉज जस्ट नाउ यू हैव सेड फैमिली बिजनेस, इज इट नेसेसरी टू डू अ बिजनेस अंडर एचयूएफ? है। सर बिना बिजनेस के कैसे होगा सर? नहीं, सो लेट मी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट टू यू। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस हो, ज्यादातर 90% लोग यही बोलते हैं कि साहब बिजनेस होना चाहिए, एचयूएफ में का मतलब है बिजनेस, नॉट नेसेसरी। नाउ टुडे आई वांट टू क्लैरिफाई दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर ऑल अदर्स एचयूएफ इज facility in income tax is available to people who are Hindus. It is not available to Muslims and Christians, except that even Sikh are also considered as Hindu under this HUF law, because ultimately Sikhism जो religion बना है that has come from Hinduism. और वैसे अगर हम बुद्धिस्ट भी बोलते हैं या जैसे I am Jain, so Jainism also has become a religion, but Jainism is basically Hindus only. They have only started following a particular sect थे, ये बाद में religion बन गए। तो Sikhs also were Hindus and they started following Guru Nanak and other gurus. Similarly, Jains were also basically Agarwals and Guptas, and so they started following Lord Mahavira's teaching. But they are all Hindus under HUF. तो उन सबको एक बेनिफिट मिलता है HUF का, एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। पहली बात तो ये है। तो ये हमारे यहाँ लॉ, हमारे इसमें मैं आपको बड़ी सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। सर RSS can be ना? RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो एक लॉ बहुत पहले से बना आया हुआ है, ब्रिटिशर्स के टाइम से ये लॉ बनाया हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल सोच रहा हूँ, मैं कौन सा एग्जांपल दूं। मैं चलिए अपना एग्जांपल देता हूँ। We are three brothers. Mukul, my name is Mukul, then Sanjay and Manish. We are three brothers. And my father, he's Mr. N.K. Jain. हमारे HUF कौन बना सकता है? Any Hindu family with a male member. Male member is the head of the family, can be the karta of that family. Even today, मेरे father एक अपना HUF बना सकते हैं। उन्होंने पहले बनाया हुआ था, खैर अब तो नहीं है। मेरे फादर N.K. जैन के नाम से एक HUF जो बनाएंगे, उसमें उनके मेंबर्स कौन हो सकते हैं? उनकी वाइफ यानी मेरी मदर, उनके तीनों सन्स और उनके तीनों डॉटर इन लॉज, उनके जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो सारे उसके मेंबर्स हो सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि मेरे फादर की सपोज कोई इनकम आ रही है, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कहीं सैलरी भी अगर है, सैलरीड भी है तो वो, या रिटायर्ड है, अब तो खैर इस एज में तो खैर रिटायर्ड है वो, लेट से उनकी कहीं से पेंशन आ रही है और उन्होंने और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी किए हुए हैं कहीं प्रॉपर्टी में या शेयर्स में, तो वो क्या करते हैं, कर सकते हैं अपनी इनकम को कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्लैब रेट लगता है हमारे कंट्री में। जैसे मैंने बताया कि साहब जहां आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो गई, आपके ऊपर 20% का स्लैब लग गया, 5 से 10 लाख के बीच में। 10 लाख से ऊपर इनकम होगी तो 30% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, अपनी इनकम को डिवाइड करने के लिए एक तो अकाउंट खुलवाएंगे, अपना पैन कार्ड लेंगे N.K. जैन के नाम से, दूसरा HUF रजिस्टर कर देंगे, N.K. जैन HUF के नाम से एक पैन कार्ड बनेगा उनका, उसका अकाउंट भी अलग होगा। तो जो उनकी शेयर्स की या प्रॉपर्टी की इनकम है वो HUF में डाल देंगे। उस HUF से जो भी पैसा इनकम आ रही है वो अगर वो अपने मेंबर्स को देते हैं, अपने सन्स को, डॉटर इन लॉ को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, तो हमें उसका टैक्स नहीं देना होगा, वो टैक्स देंगे। N.K. जैन HUF उसका टैक्स देगा। वो अपने आप में एक फर्म हो गई, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक अलग एंटिटी हो गई। तो उनके दो रूप हो गए, N.K. जैन एज एन इंडिविजुअल, N.K. जैन एज ए HUF। सिमिलरली मुकुल जैन is a member in N.K. जैन HUF, but मुकुल जैन एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ, मैरिड पर्सन होना चाहिए, वो मैं अपना भी HUF अलग खोल सकता हूँ। मेरे HUF में मेंबर मेरे फादर मदर नहीं हो सकते, क्योंकि वो मेरे असेंडेंट है, वो मेरे ऊपर की जनरेशन के। मेरे अपने नीचे के जनरेशन वाले, मेरी वाइफ उसके मेंबर हो सकती है, मेरे बच्चे उसके मेंबर हो सकते हैं।
मेरे ब्रदर की फैमिली का कोई पर्सन उसका मेंबर नहीं हो सकता, तो मेरा अपना एक एचयूएफ बन गया। मेरे दूसरे ब्रदर हैं संजय जैन, उनका एक अपना एचयूएफ में, उनके एचयूएफ में उनकी वाइफ और उनके बच्चे आ जाएंगे। मनीष जैन के एचयूएफ में उनके वाइफ उनके बच्चे आ जाएंगे। तो एचयूएफ में क्या है, जैसे मिस्टर अमिताभ बच्चन का अगर हम एग्जांपल लें तो उनकी तो जबरदस्त इनकम है, करोड़ों रुपए में, कई 100 करोड़ रुपए की साल की इनकम होगी उनके पास। आज भी इतने एड्स हैं, इतने वो हैं, तो वो क्या, उन्होंने अपना एचयूएफ डेफिनेटली खोला हुआ होगा। उन एज ए इंडिविजुअल अमिताभ बच्चन वो तो अपना टैक्स देंगे, उन्होंने अपना एक एचयूएफ खोल लिया, उसमें उनके मेंबर्स कौन होंगे, अभिषेक जया, अभिषेक, ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या, वो उनके मेंबर्स हैं। तो उसमें क्या है, उन्होंने 2 हेड बना लिए अपने। सिमिलरली अभिषेक बच्चन इज ऑल्सो नाउ मैरिड, ही कैन, हाँ, जब तक श्वेता अनमैरिड थी तब तक वो उनकी मेंबर रहेगी, लेकिन द मोमेंट द डॉटर गेट्स मैरिड, द डॉटर विल बी नाउ मेंबर ऑफ हिज हस्बैंड्स फैमिली, डॉटर कैन नॉट बी अ मेंबर। तो ये कोई जरूरी नहीं है हम बिजनेस ही करें, एचयूएफ के अंडर में हम बिजनेस करें या हम कोई भी और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम उसकी इनकम एचयूएफ में डाल सकते हैं। हमें ये दिखाना पड़ेगा हम एचयूएफ के अंडर से वो पैसा आया, हमने उसकी। एचयूएफ बनाने का फायदा क्या होता है सर? टैक्स सेविंग, इट्स अ टैक्स प्लानिंग एक्चुअली। जितने भी मतलब इसमें टैक्स ब्रैकेट कम है, मतलब टैक्स देखो, मैं कम, एक मिनट वर्ड फाइल में आपको लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि अभी ना ब्लैक बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं वर्ड एक फाइल खोल के इसमें आपको देखो, किसी की इनकम है 12 लाख। मैं सिंपल एक आपको बताता हूँ, 12 lakhs इज दी, you are able to see ना, this is the annual income of an individual। अब 12 लाख का अगर मैं, अरे यार 12 लाख का अगर मैं इनकम टैक्स निकालूंगा तो अभी क्या रूल है, फर्स्ट 2.5 lakh at the rate of 5%, so tax is equal to, sorry, first 2.5 lakh is 0%, so tax is 0. Next 2.5 lakh at the rate of 5% is equal to कितना हो गया, 12,500, ये टैक्स हो गया। फिर रूल है नेक्स्ट 5 लाख इज एट द रेट ऑफ, सीधे 20% का टैक्स लग गया। 5 लाख का 1 लाख हो गया सर, 1 लाख हो गया, पूरे हो गए ना, 5 नहीं 10 हो गए, अभी 2 लाख और बचे। नेक्स्ट 2 लाख एट द रेट ऑफ 30% लगेगा इसके ऊपर टैक्स। देखो ऐसा है हमारा टैक्स, सिर्फ 12 लाख को ही आज बहुत बड़ी इनकम नहीं मानी जाती, इसके ऊपर भी वो बंदा कितना टैक्स देगा। 2 लाख का 30% कितना हो गया, 60,000 रुपया। मैंने ये सिंपल एग्जांपल आपको बताया, जबकि ये आज एक मिडिल क्लास की भी इनकम है, तो ये टोटल कितना हो गया, 1,72,500। 1,72,500, हाँ, 1,72,500। बताओ सर, ये आपने नेक्स्ट 2 लाख के आगे क्या मतलब कैसे करा है? ये जो लास्ट में है ना, लिखा है ना नेक्स्ट 2 लाख एट द रेट 30%, इसका ये अपने 5 लाख के बाद लिया है ये? हाँ, 5 लाख के बाद। रूल ये है कि फर्स्ट 30% तो सर वो 10 लाख के बाद लगता है ना। तो सर 10 लाख पूरे हो गए ना यार, यहाँ देखो, फर्स्ट 2.5 प्लस 2.55 प्लस 5, 10 लाख पूरे हो गए ना। तो 10 लाख के बाद जो भी आपकी ऊपर इनकम है, दैट इज चार्ज एट द रेट ऑफ वॉट एवर इज द बैलेंस। अच्छा, आपने कंसेक्यूटिवली लिया है पूरा? हाँ, तो 30% लगता है ना। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, अभी तो मैं एज एग्जांपल इसलिए बताया, पूरा मैं आपको स्लैब रेट दिखाऊंगा, बट स्लैब रेट इस तरह से होते हैं। फर्स्ट
So the slab rate is first 2.5 lakh is 0%, next 2.5 lakh is 5%, next 5 lakh is 20%, balance amount is 30%. So balance remaining over here is 2 lakh. So अब देखो एक आज किसी की फैमिली है 4-5 लोगों की, तो 12 लाख रुपए की इनकम कुछ नहीं होती आज बड़े सिटी में, मतलब लाख रुपया खर्च होता ही होता है उसका। अगर वो किराया भी दे रहा है फिर तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, और उसके ऊपर इसको बंदे को देना पड़ रहा है 1,72,500 का रुपए का टैक्स, यानी कि 1.25 महीने की सैलरी दे रहा है वो टैक्स में। भाई 12 लाख का मतलब है 1 लाख रुपए की सैलरी कमा रहा है, 1.25 महीने की, समझ लो 2 महीने की सैलरी तो उसकी टैक्स में जा रही है। इसके ऊपर अभी सेस भी लगेगा 4% का, प्लस 4% सेस भी लगेगा इसके ऊपर, एड 4% सेस भी लगता है इसके ऊपर ऑन, तो 1,72,500 इज इक्वल टू, इसका दिल देखिए लगाइए 4% कितना आता है इसका। सो 172,500 into 4% is equal to 6,900. So total बन गया अब, so total is tax is equal to plus 1,72,500 is equal to 1,79,400 becomes the tax outgo। यानी ये 12 लाख कमाने वाला इतना टैक्स देगा, क्योंकि इसने, ये अभी हम प्रिज्यूम कर रहे हैं उसने कोई टैक्स प्लानिंग नहीं की, कहीं उसने इन्वेस्ट नहीं किया, उतना उसका खर्चा था, उसके पास कुछ बचा ही नहीं यार टैक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, पीपीएफ में जमा करने के लिए, इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए। तो ये हमने एजम्पशन लिया है इसमें। तो अगर सीधे सीधे 12 लाख की इनकम है, या ये समझ लो उसने सब कुछ कर लिया, उसकी इनकम ज्यादा थी, सब टैक्स प्लानिंग करने के बाद 12 लाख की उसकी नेट इनकम आई है, ये टैक्स बनता है 12 लाख के ऊपर 1,79,400। अब इसका एक तरीका ये है टैक्स बचाने का, इसने सारी प्लानिंग कर ली है, लेट्स से हम ये एक और assumption करते हैं। अब इसका तरीका क्या है, अरे सॉरी, नाउ व्हाट ही विल डू, लेट अस से ये 12 लाख की इनकम इसकी कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट से भी आ रही थी, ही कैन क्रिएट 2 heads। लेट अस से दिस पर्सन वाज मिस्टर ABC. This was his annual income. So what he will do now, he will divide this income into Mr. ABC. He will keep this income, Mr. ABC में दिखाएगा ₹6 lakh, वो इस तरह से प्लानिंग करेगा ना, 6 lakh, and he will also create another entity called not Mr. This will called ABCHUF. So he will split this income into 2 parts. So he will keep 6 lakh here and 6 lakh there. Of course, if it is possible, बिजनेस को 2 भागों में दिखाएगा वो अपने, या कोई भी इनकम को, जैसे सैलरी उसकी 6 लाख है, हम क्या करते हैं, सैलरी 6 लाख है, बाकी 6 लाख सपोज मेरा शेयर से और दूसरी इनकम से आ रहा हो, तो मैं अपने नाम पे नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने नाम का HUF खोल लूंगा। और ABC तब खोल सकता है व्हेन ABC इज अ मैरिड मेल पर्सन, देन ही कैन ओपन दिस। तो इसका पैन नंबर भी अलग होगा, डिफरेंट पैन नंबर, डिफरेंट पैन परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है, पैन अकाउंट, एंड डिफरेंट बैंक अकाउंट, because he cannot mix these two. Now it has become a different entity altogether. अब आप 6 लाख का अगर टैक्स लगाओगे, तो 6 लाख के ऊपर अगर हम टैक्स लगाते हैं 6 लाख, तो फर्स्ट 2.5 lakh at the rate of 0% is equal to 0. Next 2.5 lakh at the rate of 5% is equal to 12,500.
नेक्स्ट कितना बचा है इसमें बैलेंस? 5 लाख तो हो गया, नेक्स्ट 1 लाख बचा है। 1 लाख है सर। 1 लाख एट द रेट ऑफ 20% इज इक्वल टू 1 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000। 20,000 सर। टोटल कितना हो गया इसका? सर 32,500। 32,500। ऐसे ही दूसरा HUF भी इसी तरह से कैलकुलेट करेगा, तो 32,500 प्लस 32,500 कितना हो गया? 65,000 हो गए सर, 65,000। 65,000। और पहले कितना आ रहा था? पहले आ रहा था इकट्ठे में 1,72,500 और उसके ऊपर उसने वो लगाया फिर सेस। अब इसके ऊपर सेस लगाएगा वो, कहाँ 1,72,000 और कहाँ 65,000 रुपए, उसका टैक्स कितना कम हो गया? तो 2 भागों में उसने डिवाइड कर लिया ना उसको, 2 एंटिटीज में। ये फायदा हुआ है HUF से। ये तो सिर्फ 12 लाख की इनकम का लगाया है। जिसकी 1 करोड़ की इनकम है या 50 लाख की इनकम है, उसको तो कितना बेनिफिट मिलेगा? मतलब काफी बेनिफिट मिल जाएगा ना उसको। तो 12 लाख की इनकम पे आपने सीधे देख लिया उसका आउटगो कितना कम हो गया। पूरा उसने 1,72 में 65,000 दे रहा है, 1 लाख करीबन 10,000 रुपया उसने सेव कर दिया। 1,10,000 मतलब सर ये ABC HUF जो बना है, ABC HUF जो बना है, वो एक अलग सिटीजन ही हो गया एक तरीके से। वो अलग सिटीजन हो गया। इन द आईज ऑफ इनकम टैक्स इट इज अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर। तो इसमें चाहे वो दूसरा बिजनेस करे, तो जरूरी नहीं है बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपना दूसरे इन्वेस्टमेंट, भाई सैलरी को तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर बिजनेस को भी डिवाइड नहीं कर सकते। आप 2 बिजनेस करो ना अपने नाम से, आप अकेले हो। मैं मुकुल जैन एक बिजनेस करता हूँ, मेरा कपड़े का बिजनेस, मैं मुकुल जैन के नाम से पार्टनर, दूसरी जगह मैं मुकुल जैन HUF को पार्टनर बनाऊंगा ना दूसरे बिजनेस में। तो एक हेड में सारी इनकम ना दिखाऊं, मैं उसको डिवाइड कर दूं, स्प्लिट कर दूं। इसलिए जितनी भी बिजनेस फैमिलीज होती है उन सबके अपना एक फैमिली कई HUF बने हुए हैं। जैसे मैंने बताया, मेरे फादर का अपना HUF होगा, उनकी इनकम भी डिवाइड होगी, मेरा अपना HUF होगा। मैं वहां मैं मेंबर हूंगा अपने फादर के HUF में, लेकिन अपने HUF में मैं करता हूंगा। सिमिलरली मेरे ब्रदर भी वहां मेंबर है, दूसरी जगह करता है। और कई बार तो 3 जनरेशन तक आ जाती हैं। तो 3 जनरेशन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्रदर के बेटे हैं, वो आप लोगों की एज के हैं, कल को उनकी मैरिज अगर होगी और सारे 3 जनरेशन एक साथ है, तो उनका वो भी अपना कल को HUF खोल सकता है। वो मैरिड होगा तो एक हस्बैंड और वाइफ होने चाहिए, बच्चे नहीं भी है तो एक HUF आपने बना लिया अपना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ HUF। So it helps in splitting your income, and then you can avail of these tax rates, tax slab। तो इस लोअर स्लैब रेट से देखो वही इनकम थी, बट उसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कितना आपको फायदा मिल गया। I hope I have been able to drive my point. Yes sir. So तो हमारा टाइम भी हो गया। We have अरे एक क्वेश्चन है दिव्या भारती अगेन। सर, हु आर HUF को पार्टनर्स, कैन अ वुमेन भी HUF करता? हाँ, ये देखिए, ये जो मेंबर्स होते हैं इनको हम को पार्टनर्स, मेंबर्स कैन आल्सो बी को पार्टनर्स, एक और टर्म इन्होंने किया है। वुमेन कैन बी HUF करता है आल्सो। 2 क्वेश्चन है इनके साथ में। को पार्ट्स, अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा बड़ी जल्दी से, हमारा टाइम हो गया, लेकिन एनीवे अब आपको वो जल्दी नहीं है ना, आपका 5 मिनट बाद सेशन दूसरा शुरू होना है, तो ये हमारे पास अच्छा होगा। 1 घंटा बाद होता है सर। 1 घंटा। देखो ये सब कहने के बाद देखो फायदा हुआ है ना आप लोगों को। तो एनीवे देखो ऐसा है कि मैं आई गो बैक अगेन टू माय ओरिजिनल एग्जांपल। ये प्रेजेंटेशन अभी मैं पहले बंद कर देता हूँ, अदरवाइज मेरी 2 इमेज दिख रही होंगी आपको। हाँ, I go back to my example. Let's say my father has made a HUF. I am the member of that HUF. I have my own HUF. That is another thing. But I am a member of my father's HUF. I am member also. I am a co-partner also. As a co-partner, I can ask for the division of the family property. A co-partner has a right to ask for the division in the property. मैं बोल सकता हूँ कि जो भी HUF के नाम की जो प्रॉपर्टी है, लेट अस से उन्होंने कोई भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी HUF में दिखाई हुई है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कभी भी उनके सन्स, 3 सन्स हैं, वो कभी भी बोल सकते हैं भाई हमारी प्रॉपर्टी को डिवाइड करो। सो को पार्टनर हैज अ राइट। हम, मेरी वाइफ है, वो शी इज अ मेंबर, व्हेन आई एम देयर शी हैज नॉट अ राइट। जैसे घरों में होता है ना, इट्स अ फैमिली केस
कि डॉटर इन लॉ को राइट नहीं है कि प्रॉपर्टी की डिवीजन में बोल दे कि मेरी प्रॉपर्टी डिवाइड कर दे। नो, a son has a right to ask for the division of the family property or HUF property या HUF money का डिवीजन कराने के लिए। So if the member has that right, that member will be known as a co-partner. सर मतलब अगर HUF नहीं है तो मतलब वो डिवीजन नहीं करा सकते हैं? वो तब भी करा सकते हैं अगर HUF में के अपने रूल्स, कोई फैमिली वाले रूल्स को HUF में डाल दिया उन्होंने कि HUF में के नाम से जो भी पैसा कमाया या HUF के नाम पे कोई प्रॉपर्टी डाली हुई है तो उसका जो मेल सन है, जो मेल मेंबर्स हैं, उनका राइट है कि उसकी प्रॉपर्टी में डिवाइड करने का, अपना हिस्सा मांगने का, तो वो उन्हें कहा जाता है को पार्टनर। मेरी वाइफ का राइट नहीं है। हाँ, इन केस अगर किसी फैमिली में सन की डेथ हो गई है तो डॉटर इन लॉ फिर को पार्टनर बन जाती है, देन डॉटर इन लॉ हैज अ राइट। तो सिमिलरली ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनका तब तक राइट नहीं है जब तक उनके फादर हैं, तो दे कांट बी अ को पार्टनर। सिमिलरली पहले रूल, एक हमारा रूल आया था 2005 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक चेंज आया था। पहले डॉटर्स का पूरा राइट नहीं होता था फैमिली प्रॉपर्टी में। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक चेंज आया, उसमें डॉटर्स का भी एक राइट है, तो डॉटर्स कैन ऑल्सो बी अ को पार्टनर नाउ। सो टिल द टाइम डॉटर इज अनमैरिड, वो मेंबर है एंड शी इज अ को पार्टनर ऑल्सो। हाउएवर व्हेन द डॉटर गेट्स मैरिड, she will not be a member but she can be a co-partner। वो मेंबर नहीं रहेगी बट वो को-पार्टनर है। अगर प्रॉपर्टी का, HUF प्रॉपर्टी का भी डिवीजन होता है तो मैरिड जो डॉटर है वो ले सकती है उसके अंदर। अब इन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कैन फीमेल बी अ कर्ता। बिफोर 2005 there was no provision that women can be a कर्ता, but after 2005 they had made a provision that if there is no male member in the family, if the male member has died or या male कर्ता has died या male member है ही नहीं कोई, या for example mother and daughter हैं एक family में, तो then in that case the woman can be a कर्ता in that case only। but if a male member is there then she cannot be a कर्ता। only in the case there is no male member, major male member, minor हैं तो मेजर नहीं है कोई, तो वो कर्ता बन सकती है फीमेल। इसमें क्या लिखा है दिवा भारती है, लेकिन शादी के बाद वुमेन पार्टनर बन सकती है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। Okay, so this was our session, so let me stop the recording। So I think you have got a good fair insight into the taxation aspect। So the main aim is to enhance our general knowledge also। So thank you for the session। So